Good afternoon, ladies and gentlemen, dignitaries on the dais, other guests, fellow colleagues. Well, it gives us, or rather me, in fact, a great opportunity and a feeling of joy to get a chance and speak about the much discussed agenda of smart cities. So all of a sudden, the world has gone to a spree of talking about the word smart. So earlier, the key word which we as a children used to listen is about being a smart guy when we grew up. Then there were smart schools, and then when there were smart society, now the span has gone bigger. It's smart city altogether and a smart nation. No worries, no worries, leave it. No worries, thank you. So I think some goof up with the presentation any which way. So I'll quickly present my thoughts and having received a chance to speak in a state where Hindi is one of the official languages, if I'm not correct, I'll not miss the opportunity to switching over to Hindi most of the times. So the topic is smarter transportation and smart infrastructure. The key deliverables and the domain inputs on the topic, I think we have our subject matter experts and various secretaries who lead the domain and would go into the nitty-gritty. Today I'll try to speak from the user point of view, from the civilian point of view, from the citizen point of view. The point of view where, we expect the government and the industry to come together and they'll take our collaboration to make the so-called city around us or the village around us smart. So if you see the word smart, and the moment I step out from my home, what do I expect? Yes, an easy and a smart way to reach to my office or reach to a destination where I'm supposed to go in the evening with the family. How do I do that? Of course, we are moving towards an arena where we are talking about less pollution, a less carbon footprint. So the first step we look forward is to reduce the movement of the personal vehicle and utilization of more of public transport. I'll just give you an example. Some of the various cities across the world, they have come up with a very nice concept. There would be 3 or 4 lanes which will be going towards the city, or rather say in and around the city. The outermost lane would be the most broad, open, and the lane which gives you the maximum mobility. Those lanes will be kept open for the public transport, the buses where you can really hop in and hop on. Second lane where which would be little thinner, and those would be the lanes where you would use your personal vehicle to move in, move out. The third lane towards the inside of the focal point would be a lane which will be more for people who ride on bicycles, and fourth for the pedestrians. So on and so forth, they have been designed. So definitely, if given me a choice, I look for a mode of transportation which is fast and where, as a citizen, I have to contribute, I have to pay least value. And there where the fourth lane really comes into the picture, the lane where public transport is more wide and more open. I think Delhi tried it, but we had to really look back and look forth that how do we implement it more wisely, especially in the upcoming towns and the state capital, to start with. इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर हम और आप खड़े होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए, तो पहली हमारी अपेक्षा होती है कि मैं जिस बस से जा रहा हूँ या जिस रूट में जा रहा हूँ, उस रूट में क्या सुविधाएं मुझे मिल सकती है, किस तरह की बसेस हो सकती हैं. अगर मैं एक लंबी जर्नी करने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जहाँ मुझे एक एसी बस की सुविधा मिल जाए या एक सो कॉल्ड मेट्रो बस की सुविधा मिल जाए, जहाँ टिकट का फेयर थोड़ा ज़्यादा हो बट कंफर्ट हो डिस्टेंस को लेके ज़्यादा. इस जानकारी के साथ ये बहुत अच्छा हो कि अगर मुझे ये पता चल जाए
ये बस मेरी कहाँ है, कहाँ आने आ सकती है, कितनी देर में आ सकती है और मुझे कहाँ कितनी देर में पहुंचा सकती है। तीसरा, मुझे ये पता चल जाए और ये पता मुझे किसी डैशबोर्ड को देखने के अलावा मेरे मोबाइल पे पता चल जाए किसी ऐप के थ्रू, दैट मेरी बस कहाँ है, कितनी दूरी पे है, और अगर ये बस मुझे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दे रही है तो कनेक्टिंग कौन सी बेस्ट ऑप्शन बेस्ट सूटेबल रहेगी मेरे लिए, और वो ऐप मुझे चार्ज भी ना करे। तो आप देखेंगे स्मार्ट वर्ड जो है वो स्मैक वर्ड से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। स्मैक, सोशल, मोबिलिटी, एनालिटिक्स एंड क्लाउड। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये घोषणा कर ही दी है, एम गवर्नेंस अब ई गवर्नेंस को टेकअप करने वाला है। ई गवर्नेंस एक अम्ब्रेला रूफ रहेगा, क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन का जरिया होगा एम गवर्नेंस। सो स्मैक विल प्ले अ ग्रेट रोल टुवर्ड्स मेकिंग आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रियली स्मार्टर। इस पहलू को अगर और गहराई से देखें तो हमने हैदराबाद, तेलंगाना की जो राजधानी है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट करा, और रादर से गवर्नमेंट का बहुत बोल्ड डिसीजन था। हमने कहा जो आईटी जोन है, जहां पे डेली करीब 5 लाख उद्यमी, 5 लाख सिटीजन, एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर्स डेली आते हैं जॉब करने के लिए या अपने बिजनेस को देखने के लिए, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है सिक्योरिटी का और ईज ऑफ, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, तो ईज ऑफ एक्सेस टू बिजनेस, ईज ऑफ एक्सेस टू ऑफिस का, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है वुमेन सेफ्टी का। तो हमने इस कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए शी शटल्स की घोषणा करी। शी शटल्स एक डेडिकेटेड व्हीकल जो महिलाओं के लिए, हमारे वुमेन फोक के लिए उस आईटी सेक्टर, आईटी कॉरिडोर में ऑपरेट करेंगी और उनको वेरियस पॉइंट्स राइट फ्रॉम देयर वेरियस वर्क प्लेसेस टू वेरियस अदर जंक्चर्स पहुंचाएगी। अब आप सोच सकते हैं इससे कितनी आसानी है। रात को 10 बजे भी अगर किसी महिला अधिकारी की शिफ्ट खत्म हो रही है, या एंटरप्रेन्योर रात को 11 बजे भी अपने यूएस कस्टमर्स को अच्छे से इंगेज करने के बाद, डील करने के बाद, अपने बिजनेस कमिटमेंट्स डिस्कस करने के बाद घर जाना चाह रही है और अपनी व्हीकल नहीं यूज़ करना चाह रही, जिसको हमने एजेंडा बनाया है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आप आइए, आप अपनी व्हीकल्स यूज़ मत कीजिए, सिटी के स्मार्टनेस के लिए, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए काम कीजिए। तो सिर्फ बातें नहीं, हमने फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट किया, उनको शी शटल्स दिया। अब मैं बस स्टॉप पे हम खड़े हैं और हमें पता नहीं है कि शी शटल कहाँ है, कहाँ जाएगी, किसको कॉल करेंगे। तो हमने एक बहुत सिंपल मोबाइल गवर्नेंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एक शी शटल ऐप बनाया। उस ऐप पे हम लॉग इन करते ही, रादर लॉग इन द वर्ड यूज विल नॉट बी करेक्ट, हम उस ऐप को खोलते ही वी कैन वेरी इजीली सी व्हाट आर द नियरेस्ट पॉइंट्स वेयर द शी शटल इज देयर। बहुत सारे आज के डेट में प्रोविजनिंग सिस्टम्स आ गए हैं जो हम ओला कैब्स या उबेर कैब्स की बात करते हैं, सेम टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, सेम मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में सी शटल के साथ साथ सिक्योरिटी का दूसरा फीचर ये है, हमने एक दूसरा ऐप यूज़ करा, हॉकाई। ये ऐप उसी प्रिंसिपल पे आधारित है जिसकी चर्चा हम बहुत बार इंडिया में कर चुके हैं, कई और फोरम्स में हो चुकी है, कि जब आप किसी दुविधा में हो, किसी संकट में हो या कोई हेल्प चाहिए, उस ऐप पे क्लिक करते ही आपके सोशल नेटवर्क में जितने भी आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे आपके पोजीशन की अलर्ट पहुँच जाती है विथ योर लोकेशंस। सो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन और स्मार्ट टच, यहाँ पे एक आयाम, यहाँ पे एक डायमेंशन हमने छूने की कोशिश करी। अब बड़ी बात यह है कि जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, तो क्यों ना हम इसको स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करें और अपने सारे बसेस, ना कि सिर्फ हैदराबाद शहर हो या किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी शहर में नहीं, बिटवीन द सिटीज़, बिटवीन द सिटी टू द विलेज, बिटवीन द विलेजेस प्लाई करने में इसको लाएं। इस बारे में हम प्लानिंग स्टेज पे हैं और काफ़ी
एग्रेसिव प्लानिंग हमारी चल रही है जो इम्प्लीमेंटेशन की ओर बहुत जल्द जाएगी, जिसपे हम स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की जो परिकल्पना है, जब ट्रांसपोर्टेशन का जो मूवमेंट है, बसेस का मूवमेंट है और उनकी गतिविधियां हैं, उसको हम मेजर कर सकें। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो बहुत ज़रूरी बात आती है कि हम ट्रांसपोर्टेशन को अवेल कैसे करें। तो टिकटिंग सिस्टम इज़ द की वर्ड। हर सिटीज़न के लिए बहुत ज़रूरी हो गया और हम कहते आ रहे हैं इंडिया में, वी शुड लेस डिपेंड ऑन कैश, कैश का मूवमेंट कम करें, कैश का मूवमेंट कम करें। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे हर बसेस में मोबाइल वॉलेट, जो एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटेड और वेल टू डू कंसेप्ट आ चुका है, सिटीजन अपने मोबाइल वॉलेट से ही ऑन द बस, ऑन द फ्लाई अपने टिकट पे कर सके। सो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रयोग होगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो डेफिनेटली हमें एक नेक्स्ट लेवल पे बहुत आसानी से पहुंचा देगा। मोबाइल रिचार्ज कराने का जो मॉडल रहा है, जो कस्टमर से लेके रिटेलर तक का, उस सेम मॉडल को यूज़ करते हुए कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी बातों का सार ये निकलता है, द समरी ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज विच आर ऑलवेज एंड हैव बीन अवेलेबल। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। इट्स ऑल अबाउट नॉट creating a new wheel, but using the same hub and the same spoke of the existing wheel well connected. इसके बाद इंपॉर्टेंट एक एजेंडा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी हमारे टॉपिक में इंक्लूजन पॉइंट रहा है। अगर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आई वॉज जस्ट सीइंग द न्यूज़ चैनल और अबू धाबी के पास मजदर शहर की बहुत बात हुई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए। वो एक आइडियल ड्रीम डेस्टिनेशन है, एक नॉर्थ स्टार बनाने की परिकल्पना की गई है, जहाँ पे यू लीव योर ऑल ट्रांसपोर्ट एट द सिटी पेरिफेरी। आप अंडर द चैनल एक सिटी की ट्रांसपोर्ट को लेते हैं जो सोलर पावर पे चलती है, जो नॉन मैन्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। So all you have to do is key in your location and the transport will take you through themselves automatically. और ये चलने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग हो रहा है, जिस एनर्जी सोर्स का प्रयोग हो रहा है, वो सोलर एनर्जी पे आधारित है। तो ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम शुरुआत किसी नए शहर से कर रहे हैं, भोपाल या हैदराबाद के बाहर जो नए इंडस्ट्रियल जोन आ रहे हैं वहाँ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शहर है उस पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वर्ड आता है, जिस इंग्लिश के डिक्शनरी की वर्ड की सबसे ज़्यादा यहाँ अहमियत आती है, वो है रेट्रोफिटिंग। अब रेट्रोफिटिंग जो वर्ड है, जहाँ सब कुछ हो चुका है और आपको फिर उसको वापस फिट करना है। यहाँ पे डिस्कशन को मैं एक नए डायमेंशन पे ले जाना चाहूँगा। आई विल टेक 3 ओनली सर। सो रेट्रोफिटिंग की जब बात आई तो हमने एक एग्जिस्टिंग चैलेंज को पहले एड्रेस करने की कोशिश की। हमने कहा क्या स्मार्ट सिटी या स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन या स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हम सब जो ऊपर वाले के आशीर्वाद से वेल टू डू, एवरीथिंग इज गुड एंड ऑल लिम्स वर्किंग? What about our people who are challenged, जो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से जूझते हुए भी लाइफ में उन्होंने एग्जाम्पल सेट करके रखा है? सो बैरियर एक्सेस फ्री इज द वर्ड। अगर हम स्मार्ट सिटी और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन या स्पेशली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की परिकल्पना करते हैं, स्पेशली हम बाहर की बात ना करें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें, तो रेट्रोफिटिंग ऑफ बैरियर एक्सेस फ्री मेथोडोलॉजी विल बी द की वर्ड to fill the gap, and from there we can always add on to all the existing technologies, existing methodologies and existing guidances from whatever the best examples in the world have been towards making our place smarter. And the most important component, since I work for Ministry for IT and report to my Honorable Minister for IT, so SMAC की बात मैंने कही, सबसे important अदर कनेक्टिविटी का पार्ट आता है। सो कनेक्टिविटी को हम कैसे जोड़ें? यहाँ पे तेलंगाना में हमने एक और फ्यूजन करने की कोशिश की। तेलंगाना हैज़ गॉट अ बिग प्लान ऑफ रूरल वाटर ग्रिड, जहाँ हर घर को एक स्थायी परमानेंट वाटर
सोल्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए पूरे राज्य में देयर विल बी अ डक्ट विच विल बी लेड अंडरग्राउंड। तो हमने कहा कि हम तो यहाँ पे डक्ट ले कर ही रहे हैं, वाटर की पाइपलाइन डालेंगे ही, क्यों ना साथ में एक केबल भी डाल दें। सो हर घर पानी भी पहुँचेगा, हर घर कनेक्टिविटी भी पहुँचेगी, और एक बार जब कनेक्टिविटी आपके पास पहुँच गई, उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। स्मार्ट को स्मार्टर आप बनाते रहें। और यहाँ पे स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज की जो बात चल रही है, ये इन दोनों को हमने सेम प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की, और हम चाहेंगे और हम आशा करते हैं कि बाकी हमारे सारे और प्रगतिशील शहर, भोपाल जो एक राजा भोज की नगरी है, और हर बार जब हम आते हैं तो हैदराबाद और भोपाल के बीच में द लेक कनेक्ट है ना, यहाँ भी ये लेक की राजधानी है, वहाँ भी लेक की राजधानी है। तो साथ ग्रो करने का सपना लेते हुए मैं आप सभी को आमंत्रित करूँगा, हैदराबाद आइए और देखिए, साथ में जुड़िए, और हम देखिए कलेक्टिवली बैलेंस करते हुए स्मार्ट, डिजिटाइज्ड और एंड ऑफ द डे मोर ह्यूमन, मोर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को कैसे हम कार्यान्वित इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।